ऑडियो बुक नावल अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला चैप्टर 4। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि एंडी कैसे ट्रेन का सफ़र करता है और उन कुदरत के खूबसूरत मनाजिर के बारे में भी जाना जो उसने अपने सफ़र के दौरान देखे। एंडी ने विक्टर होटल में कमरा लिया और सोचा कि घूमने फिरने से पहले वो थोड़ा आराम कर ले। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होगा। चैप्टर 4 फर्स्ट लाइन। In the next morning when the sky changed its clothes and the window looked pale, Andy woke up and after having a breakfast he picked up his diary and entered the world he had always dreamed of. अगली सुबह जब आसमान ने अपने कपड़े बदले और खिड़की जर्द दिखाई दी, एंडी जागा और नाश्ता करने के बाद उसने अपनी डायरी को उठाया और उस दुनिया में दाखिल हो गया जिसके बारे में हमेशा से उसने ख्वाब देखा था। He reached where the photographer stood many years ago and took the photo that was present in his room. He tried to guess in his mind and pretended to be that photographer who captured that sizzling photo. वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर फोटोग्राफर ने कई सालों पहले उस तस्वीर को बनाया था जो तस्वीर उसके कमरे में खड़ी थी। उसने दिमाग में सोचा और दिखावा किया उस फोटोग्राफर की तरह जिसने वो शानदार तस्वीर खींची थी। फॉर एंडी द photo had come to life and was right before his eyes. He walked through the green fields by touching the tiny birds with the fingers of his hands. He stood silent, took a deep breath, widened his arms, and gently moved his head towards the sky and thought for one moment that he was not a man, he was a bird flying in the sky far, far away from the clouds and heading towards the paradise. हैंडी के लिए वो तस्वीर अब जिंदा हो चुकी थी और बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। वो सब्ज खेतों में से गुजरा और नन्ही कलियों को अपने हाथ की उंगलियों से छुआ। वो एक जगह पर बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली, अपने बाजुओं को चौड़ा किया और अपने सर को आसमान की तरफ किया। वो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि परिंदा है और वो सीधा उड़ के जा रहा है जन्नत की तरफ। आफ्टर वॉचिंग द माउंटेन द वर्ड्स फ्लो लाइक अ रिवर इन हिज माइंड। हाउ कैन यू पुट योर पेन इन योर इंक पॉट व्हेन यू हैव फीलिंग्स लाइक दीज। ही टुक his pen from his pocket and sat on the stone and tried to immortalize the beauty of each shire, and he wrote. पहाड़ को देखने के बाद अल्फाज दरिया की तरह उसके जहन में बहने लगे। आप कैसे अपने पेन को नीचे रख सकते हैं जब आपके अंदर ऐसे जज्बात आएं। उसने सोचा कि मैं अब इन जज्बात को और इन खूबसूरत एहसासात को लाफानी बनाने की कोशिश करता हूँ। और फिर उसने लिखा, At last I saw the Eastshire mountain, and it is more beautiful than the Cordova's fountain. At last I saw the valley's flowers, and they are more soothing than heaven's showers. At last I saw the Eastshire trees, and they are more delightful than the royal glees. At last I saw the valley's clouds, and they are more pleasing than the Colosseum crowd. At last I walked on Eastshire stones, and they are more comfortable than the bed's foam. At last I saw the valley's lake, and it is more attractive than the gold's flake. At last I heard the Eastshire bird's song, and they are more melodious than the paradise cradle songs. At last I saw the valley's die, and it is more charming than the Helen's eye. As he wrote the last line, the rain started falling, so he closed his diary and walked few steps. Then the wind blew. जब उसने आखिरी लाइन नज़म की लिखी तो बारिश होना शुरू हुई। उसने अपनी डायरी को बंद किया और कुछ कदम आगे की तरफ चला और फिर हवा चलना शुरू हुई। And it was so cool and soothing that it seemed as if it had been coming after passing through the tiny spores of a giant ice cube. हवा इतनी ठंडी और आरामदेह थी कि ऐसा लग रहा था कि हवा एक बड़े से बर्फ़ के गोले के छोटे छोटे सुराखों में से गुजर कर आ रही थी। And he removed his shirt. He wanted wind to touch his chest and arms. He wanted wind to touch and shake his chest hair. He wanted to experience the gentle slap of wind. एंडी ने अपनी शर्ट को उतारा। वो ये चाहता था कि हवा उसके सीने को छुए। वो चाहता था कि हवा उसके सीने के बालों को छुए। वो चाहता था कि वो हवा का सही मानी में तजर्बा कर सके। Suddenly the rain started falling heavily.
Andy ran and took shelter under a tree. The drops of rain were still falling on him after kissing the leaves. This was the picture he had always imagined in his mind, and it was right in front of him at that time. अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो गई। एंडी भागा और एक दरख्त के नीचे पनाह ली। बारिश के कतरे उसके ऊपर गिर रहे थे पत्तों को चूमने के बाद। यही वो तस्वीर थी जो कि हमेशा से उसने तस्वर की थी अपने दिमाग में, और अब वो तस्वीर बिल्कुल उसके सामने थी। आउट ऑफ नोवेयर, अचानक कहीं से, he saw a girl jumping, splashing, running and enjoying the rainfall, not afraid of getting wet. She had with her an umbrella, closed black umbrella, and he thought that it would be good for him to reach his hotel before the clouds could make it hard for him to reach there. He decided to call the girl, hoping to get her umbrella, which she seemingly did not need at that time. अचानक कहीं से उसने एक लड़की को देखा जो कि बारिश के पानी में उछल रही थी और लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, और वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी भीगने से। उसके पास एक छतरी थी, एक बंद काले रंग की छतरी। एंडी ने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो होटल में पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि बादल उसके लिए वहां पर पहुंचना मुश्किल कर दें। उसने फ़ैसला किया कि वो लड़की को कहेगा कि वो उस अपनी छतरी उसको दे दे, क्योंकि छतरी की ज़रूरत बज़ाहिर लड़की को उस वक्त नहीं थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, ही सेड, बट शी डिड नॉट लिसन। उसने कहा लेकिन लड़की ने ना सुना। एक्सक्यूज़ मी मिस, ही शाउटेड, बट स्टिल शी डिड नॉट लिसन। एंडी चीखा लेकिन फिर भी लड़की ने ना सुना। एक्सक्यूज़ मी मिस, दिस टाइम ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। शी टर्नड अराउंड बट डिड नॉट सी हिम। अब एंडी ने पूरे ज़ोर के साथ आवाज़ दी। लड़की पीछे मुड़ी लेकिन उसने एंडी को नहीं देखा। ओवर हेयर, आई एम हेयर, ही सेड बाय वेविंग हिज राइट आर्म, एंड शी सॉ हिम। मैं यहाँ पर हूँ, उसने अपना दायां बाजू हिलाते हुए कहा, और लड़की ने उसे देख लिया। व्हाट, क्या क्या है आपको? शी सेड लाउडली, उसने ऊंची आवाज़ में कहा।